हमको जनता को कुछ बहुत सुविधा आसान कर दिया। इसमें से वेरी लकीली हमारा पोंगचाउ टू कोन्नू कोनसा का एक ब्रिज है जो आज इसमें से अरुणाचल प्रदेश है जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है BRO का, क्योंकि हम BRO जय श्रीमान। दो 2025 के आज 7 मई और इस वक्त हम तिरप डिस्ट्रिक्ट तिराजू के BRO हेडक्वार्टर 103 के यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और ये जो पीछे पे आप देख रहे हैं, ये पूरे जो प्रोजेक्ट है BRO के अंदर में किए गए पूरे भारतवर्ष से है, और जिसमें से हम ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पे 4 जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं ये पूरे अरुणाचल से है। और इनमें से एक लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट कोन्नू गांव में जो हाल ही में बनी है ये ब्रिज है। तो इसका आज 66वीं BRO स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। तो चले सबसे पहले आज के जो 66वीं BRO स्थापना दिवस के अवसर पर किए गए तो ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया जाएगा। ऑनरेबल MLA सृष्टि पंचम वक्का के विधायक अर्जुन मांडम के मौजूदगी में गृह मंत्री जी इसको आज ऑनलाइन इसका इनॉग्रेट किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज के पूरे कार्यक्रम, फिर हम मिलेंगे। सीमा सड़क संगठन 66वीं BRO स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह द्वारा 50 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to one and all present here today at this significant occasion, the inauguration of 50 infrastructure projects constructed by BRO by Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. First of all, I feel honored and blessed that this time this 103 RCC has been given this wonderful opportunity to host this function on behalf of Project Podial. This day is very special to us as we are also celebrating our 66th Raising Day on 7th May 2025. I would also like to tell you that our 1446 BCC, which is located at Anini and which has constructed 2 major bridges which are going to be inaugurated today by Honorable Raksha Mantri, has been awarded the best BCC in BRO this year. Gentlemen, Jai Hind. It gives me much joy and I indeed feel honored to welcome you all to this momentous occasion. The inauguration of 50 infrastructure projects developed by the border roads by the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh on the 66th
raising day of the Border Roads Organization. Out of the 50 projects which are being inaugurated, there are 4 infrastructure projects which are there in the state of Arunachal Pradesh. They are as under: the Tisa Bridge, a 110 meter span steel superstructure bridge which is located very close to us at kilometer 15 on the Unsa Road. The Three-River Bridge, which is also a 80 meter span bridge, just the beginning of opening of these infrastructure projects to the public, but the strengthening of connection, progress and opportunity for everyone in this remote region. Ladies and gentlemen, we are indeed honored to have with us today a special guest, a dedicated public leader and a strong supporter of infrastructure development in his constituency. We welcome our respected member of the Legislative Assembly, Shri Hongchuk Angdam. He is a member of the Assembly since the year 2004. He is presently the advisor to the Minister PWD. He has also served as the Minister of Rural Works Department and Education earlier. Your presence here today, sir, underscores the importance of these projects and the government's commitment to the betterment of the people of Arunachal Pradesh. We are truly privileged to have him with us on this planning, coordination and hard work. It is a testament of what we can accomplish together through vision, persistence and collaboration. Whether it's easing our daily commutes, connecting markets or ensuring safer travel, these bridges are set to become a vital lifeline in the region. Thank you, ladies and gentlemen, for your presence. Jai Hind. Thank you so much, sir. Now it is my great privilege to invite our esteemed chief guest, Shri Hongchuk Angdam, Honorable MLA, who has always been a driving force behind infrastructure development and regional progress. Most respected Chief Engineer Ji, most respected Deputy Commissioner, Tirap District, most respected SP Tirap District, besides and represent the team of Chief Engineer, BRO, Director Planning, Executive Panchayat Block, and ladies and gentlemen present here. First of all, I would like to extend on behalf of people of 60 Panchayat Assembly constituency and Longding and Tirap district as a whole, would like to extend our heartfelt thanks and congratulations to our Raksha Mantri Rajnath Singh Ji, who is going to inaugurate this project, very important and strategically important project in Arunachal Pradesh. We are very thankful to Modi Ji. We are very thankful to Amit Shah Ji. We are very thankful to Honorable Chief Minister Pema Khandu Ji. We are very thankful to all of you equally. This is occasion, very important occasion, and for all of us. Especially it coincided with the 66th Rising Day of your most popular organization for the country and for the people, let's say. ये उद्घाटन जो उसी दिन होना था, उसी दिन जो इंसिडेंट हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया है.
हम लोग तैयार था उसी दिन भी, हम लोग तैयार था। हम ऐसे भी खुशी हैं कि ये आपका ब्रिज जो कोन्नू कोनसा और पोंचा के बीच में जो ब्रिज है, इसका इनोग्रेशन, इट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ द ब्रिजेस इन अरुणाचल प्रदेश, रोड हो या ब्रिज हो, ये इनोग्रेशन पे हम खुश हो के उसी दिन भी तैयार था। हमारे जेपीएम साहब को बोल के रखा था हम दोनों जैसे भी इसमें उद्घाटन प्रोग्राम में जो है शामिल होना है। तो आज जैसे उसी दिन होना था, इंसिडेंट हो के उसी दिन एक्सटेंड कर दिया गया, कैंसिल हुआ था, तो ये सपना आज सही निकला है। सो वी आर वेरी थैंकफुल। जैसे भारत माता के हम लोग जैसे बोलते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है विद इन द इंडिया एंड अलोंग साइड इट, ये बियर टेप वाला हम लोग ग्रेट बोलता था पहले, ये गरीब भी बोलता था, बियरो बोलता था, हम लोग बियर टेप भी बोलता था। ये पुराना कहानी है यहाँ में। हमारा तिराप या लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट, लॉन्गडिंग हैज बीन बाइफरकेटेड इन 2012 ओनली का रास्ता भी आप लोग ने बनाया है। हम लोग काफ़ी कोऑपरेट किया उस समय में। हाँ, हम लोग काफ़ी कोऑपरेट किया है, जनता ऐसे हो बहुत कम कोऑपरेट किया है। जैसे कौन सा तो पहुँचा है, आप लोग नहीं बनाए, तो स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो गांव वालों को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, गांव अथॉरिटी वालों को भी, कि ये लोग ऑब्स्टेकल नहीं दिया गया। कुछ कॉम्पेंसेशन, नॉट डायरेक्टली कॉम्पेंसेशन, ऐसे कुछ लेबर लिस्ट में या कोई मास्टर रोल में कुछ राजा लोग को, गाँव वालों को कुछ बना के देता था, सुना है। हम लोग जब स्टूडेंट था उस समय का बात है, आज नया बात है। सो आवर रिलेशन विद द बियर टीम, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए न्यू वन। तो जनता के साथ में पहले से हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी या तिरा TCL बोलता है, तीसरे रीजन का, जहाँ भी हो इनके साथ में हम लोग का TCL के लोग पहले से कोऑपरेट करते आ रहा है, अभी भी करेंगे। तो ये डेवलपमेंट का काम भी है और स्ट्रेटेजिकली हम लोग का ये डिफेंस का भी है, डिफेंस पर्पस का भी है, प्लस ये जनता का भी है, डेवलपमेंट भी हो जाता है। ये ब्रिज का कोन्नू कोनसा ये पोंचा का जो ब्रिज था, वो पहले का स्टील ब्रिज था, शायद आयरन था, स्टील था, ऐसे कुछ था। तो अभी तो सही निकला है। फॉर सम इयर्स इट वॉज लाइक अबंडन। तो हम लोग चिंता कर रहा था क्या बात है, क्या हो रहा है। तो कोई सुनता था कि ये छोड़ दिया गया है, ये क्या। रिसेंटली फिर उसको रिव्यू किया है, काम क्या अच्छा हुआ है। कभी कभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी होता है, वहाँ का कुछ किडनैप भी हुआ था, जिसमें हम लोग भी क्यों ऐसे होना है, कैसे होना है बोल के हम लोग भी ये मतलब ये कॉल किया या कम्युनिकेट किया उस तरफ का लोग से, कैसे क्यों करना चाहिए, हमारे जगह से क्यों किडनैप करें, चाहे BRTF का हो, चाहे हमारा सिविल का हो, चाहे जनता का हो, कहीं का ब्रिज, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चलते रहेगा, क्योंकि ये देश के लिए है और जनता के लिए। अच्छा लगा है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। मिलिट्री मूवमेंट के लिए भी ये पोंचा और कोन्नू कोनसा का सही है। उसमें से कौनसा से हमारा PMGSY3 में जब RW मिनिस्टर था, मैंने ये क्या है, CM साहब का आशीर्वाद से, मोदी जी का आशीर्वाद से या अमित शाह का आशीर्वाद से ये लाया गया। PMGSY3 है, कौनसा से खासा हमारा बस्ती में वो PMGSY अभी 3 चल रहा है, तो वहाँ कनेक्ट कर देंगे। दे विल लिंक डायरेक्टली टू बोर्नू तो खानू का और बोर्नू का बीच में हम RCC ब्रिज बना दिया है, वो SPA वगैरह या कुछ SIDF से ऐसे करके बना दिया, तो वक्का सर्कल भी लिंक हो जाता है। बाद में इंटर कॉरिडोर रास्ता बन जाएगा, तो हम लोग का तो लाजू से भी पूरा कनेक्ट हो जाएगा, लाजू और दरम से भी कनेक्ट हो जाएगा करके, तो वी आर थिंकिंग सो। तो यहाँ में फिर खुशी की बात है, रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया गया है या अप्रूव किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम वो सब चल रहा था, इंडो चाइना में चल रहा था। जब अमित शाह जी ये नामसाई में आया था, देवमाली में नरोत्तम नगर का चीफ गेस्ट गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन हुआ था, उस समय हम लोग का TCL तिराप चंगम लॉन्गडिंग का लेजिस्लेटर और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी एंड MP, हम लोग एकदम वेरी एक्सक्लूसिव इन कैमरा मीटिंग हुआ था हम लोग का। तो उसमें आई वॉज वन ऑफ स्पीकर्स उसमें। तो मैंने बोला है उस तक जो इंडो चाइना में जो चल रहा है, द फ्रंटियर हाईवे जो है विजयनगर तक है, ये मरम्मत भी होना है।
ऑनर किस लिए, अगर चाइना निकलेगा तो सिर्फ उस तरफ से नहीं निकलने वाला, अभी म्यांमार तरफ से निकले, मैंने उसी दिन बताया 1 पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट आई हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड अमित शाह जी कि ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो इंडो चाइना का तरफ चल रहा है, ये भी इसका म्यांमार का तरफ भी चलना चाहिए। 2022 का बात है ये। तो कितना खुशी की बात है, अमित शाह जी आया, फिर अभी तो आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा तेरा चांगलांग लोंगडिंग का जितना भी है इंडो म्यांमार का आसपास वाला आइडेंटिफाई किया। सोम विलेजेस ले पाओ हम बात कर रहे हैं, ले पाओ है उसमें हम लिख के उसको भी ये करना है, ये भी खुशी की बात है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी हमारा इंडो म्यांमार तरफ भी चलेगा। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट पेमा खांडू जी एंड अमित शाह जी एंड मोदी जी। देश है मोदी है तो मुमकिन है, तो सच है। वी हैव सीन because I had been in this legislature since 1995 with one time break in 1999। तब से हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग कांग्रेस में भी था, अरुणाचल कांग्रेस में भी था, ये PPM में भी था शॉर्ट टाइम में, लेकिन ऐसे देखते आ रहा है। आई एम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग लेजिस्लेटर नेक्स्ट टू ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ऑनरेबल का पीछे में हम दोनों साल में आया था 95 में, तो वो तो विदाउट ब्रेक है, हम वन टाइम ब्रेक वाले हैं। ऐसा करके हम देखते आ रहे हैं। तो सरकार तो काफ़ी सरकार देखा है, बहुत गवर्नमेंट देखा है, लेकिन गवर्नेंस का अलग अलग है। सो दिस बीजेपी गवर्नमेंट सीज पार्टी में डिफरेंस, गवर्नमेंट में डिफरेंस, गवर्नेंस में डिफरेंस, ये तो पक्का बात है, बहुत मजबूत है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ता में हो, चाहे बिल्डिंग में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे एग्री होती में हो, कोई भी चीज़ में बहुत मजबूत है। जो भारत जो है, हम लोग भारत माता की जैसे बोलते हैं, बहुत मजबूत है, किसी से तुलना नहीं कर सकता है, हम छोटा दिल नहीं हो सकता है। ये भी दिस इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ दिस। मोदी जी देखिए अभी जो आज उद्घाटन होने जा रहा है, तो दिस आर द रिजल्ट, दिस रिफ्लेक्ट द एक्टिविटीज एंड डीड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीजेपी का गवर्नमेंट में चल रहा है, कितना खुशी की बात है, और भी चलेगा। तो मेरा यही अपील है हमारा चीफ इंजीनियर साहब को, जैसे पहले बताया, पंजाब में थोड़ा कुछ जगह में वॉल बना दीजिए। हाँ, इसमें ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, ये टीम साहब गाड़ी में हम दोनों बात कर रहा था, हमारा राहुल जी को बताया था उसी दिन, तो आपको सुनाना होगा। प्रपोजल भी दे रहा हूँ, आप लोग चीफ गेस्ट बुलाए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एट द सेम टाइम जहाँ जरूरी है आपको हम लोग प्रपोजल सबमिट करेंगे, चाहे पंचा हो, मक्का हो, लाजू हो या विजयनगर हो, कहीं भी हो, हम लोग को मदद कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो डे है बनाने जा रहा है। दिस इज इन आवर लेवल, दिस ड्रीम प्रोजेक्ट है, मिनी सेक्रेटरी बना रहा है पंचा और वाका में, हमारा छोटा जगह में है। दिस इज लाइक ए ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए बना रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका रास्ता का ये जहाँ साइड में प्रोटेक्शन वाल में बना दीजिए। प्रपोजल प्लेस कर रहा हूँ आपको। बाकी जैसे मैंने बताया, जनता तो कॉपरेशन तो है ही, अभी दिखाई दे रहा है हमारा पहुँचा बहुत लोग है यहाँ, ये राजा लोग से देखते हैं, मालूम नहीं था कितना लोग पार्टिसिपेट कर रहा है आज का प्रोग्राम, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है कोन्नू का राजा भी है, न्यातो भी है, और कोई GPM है, कोई मेंबर है, काफ़ी लोग दिखाई दे रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो, ये लोग शामिल हुए हैं, अच्छा बात है। हमारा जगह का ब्रिज उद्घाटन कर रहा है, तो हम लोग शामिल होना जरूरी है। हम कैसे एब्सेंट हो जाए, आप भी एब्सेंट नहीं हो सकता है, हम भी एब्सेंट नहीं हो सकता है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ आवर ड्यूटी। ये बियर वाला हम लोग को बना दिया है, ये तो उनके लिए नहीं था, ये तो कोन्नू को जब पहुँचा हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वांचू के लिए, नोक्ते तंगसा तुसा के लिए, सब के लिए है। इट इज़ इसके लिए डिफेंस के पर्पज भी आ जाएगा, डेवलपमेंट भी आ जाएगा। राशन पानी भुगता है, पहले पंजाब से चावल भुगता था, चाहे कोन्नू हो, कौन सा हो, या कामो नमनू हो, या हमारा खर्चा हो, चावल भुगता था वहाँ से 30-40 kg बुक के चलता था। अभी बियर के रास्ता बना दिया है, अभी हमारी तरफ से PMGS में रास्ता भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। अभी गांव में पूरा APS लाइसेंस है, वहाँ खाओ, पहले पंचायत से भुग के खाता था। ये आप लोग ने रास्ता बना दिया, पुलिस कोन्नू कौन सा तो सुविधा पहले ही मिला, उसके बाद में धीरे धीरे बाकी हमारा खासा काम हो उसका भी ऐसे को मिलने को, ये मतलब सुविधा मिलने को शुरू कर दिया। सो भाषण तो तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी कर सकते हैं हम लोग करेंगे, आप लोग का तरफ से जितना भी कर सकते हैं आप लोग आगे बढ़ते रहिए। सो वी हैव टू गो अहेड इन ऑल एस्पेक्ट्स। हम सोने के लिए नहीं हैं, हम देखने के लिए नहीं हैं, हम पीछे छूटने के लिए नहीं, हम आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे मोदी जी बोलते हैं, पहले तो लास्ट विलेज बोलता था, जैसे कोचा को, जैसे कामपंग को, जैसे कोकला,
जैसे वो का जो भी लास्ट विलेज बोलता था, अभी तो बोलता है फर्स्ट विलेज बोलता है। तो लास्ट मेल बोलता था पहले, तो अभी तो फर्स्ट मेल बोलता है। तो कुछ फॉरवर्ड पॉलिसी है कि ना, मजबूत का बात है कि ना, खुशी का बात है। सो एवरी सब कुछ अभी गांव में हर घर में नल स्टेशन भी सब पानी पी रहा है अभी, राशन पानी तो सबको दे रहा है अभी। हाँ, वगैरह तो बैंक लोन तो दे रहा है, सब्सिडी तो दे रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है। ये तेजू रास्ता तो ठीक हो गया, पहले ऐसे नहीं था। हम तेजू में पढ़ाई लिखाई किया है, कितना खराब था, हलोबारी था, बटिस माइल वगैरह वगैरह लो दही, कितना खराब था। अभी तो 40 मिनट में 50 मिनट में पहुंच जाता है। अभी रोहित तरफ भी दिखिए आप लोग, क्या 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 अभी बोगी बिल भी दिखिए। अभी लॉन्गडिंग में पूरा हाईवे, यहाँ फुंसा ये बीच में हाईवे पहले 3 घंटा लगता था लॉन्गडिंग और फुंसा के बीच में, अभी 40 मिनट्स में। जंगलम दिखिए, अभी हम लोग वहाँ ना कितना थ्रो आया, इतना अच्छा रास्ता हो गया। So these are all the blessings from the government and mainly the implementing agency, organization you all. आप लोग का हाथ है सब कुछ में. So I am very thankful to all of you and I am going to my speech with this. Thank you so much, sir, for your inspiring words, for your invaluable experience that you have shared with us. We will be indebted to you for this. So now we come to the most awaited moment of today's event, the official inauguration of 50 infrastructure projects by Honorable Raksha Mantri from Delhi. This milestone सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करें। सीमा सड़क संगठन का अधिकांश कार्य हिमालय की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में होता है और ऐसे में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय की पंक्तियां स्मरण आती हैं। रे रोक न युधिष्ठिर को यहाँ, रे रोक न युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे तुमको स्वर्ग की, पर गिरा हमें गांधी गदा। डॉक्टरों को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान किया है। उनका साहस और प्रतिबद्धता हमें प्रतिदिन अपने सामरिक बुनियादी ढांचे के को अटूट समर्पण के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमा सड़क संगठन उत्कृष्टता की खोज में लगा रहेगा, कृषि उपलब्धियों को आगे बढ़ाएगा और हमारे राष्ट्र के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। जय हिंद। निर्माण क्षमता में कई गुना वृद्धि की है। इन 50 परियोजनाओं के राष्ट्र को समर्पण के उपरांत विगत 2 वर्षों में कुल 161 परियोजनाओं का बीआरओ द्वारा राष्ट्र को समर्पण हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कीर्तिमान। बीते कुछ समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस तत्परता के साथ काम किया है, मैं कह सकता हूं वह अभूतपूर्व है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में बीआरओ कर्मियों एवं सीपीएल को कुछ नए लाभ प्रदान किए गए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में लुंड्रो जीजी डामते यांगते सड़क निर्माण कार्य प्रोजेक्ट वर्कर से श्री विंस्टन आर मारर, श्री नरेंद्र सिंह। Kiran Rijiju ji, Minister Parliamentary Affairs and Minority Affairs, Dr. Jitendra Singh, Minister of State Science and Technology, और हमारे बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े गवर्नर हिमाचल प्रदेश हिमांशु प्रताप जी शुक्ला, गवर्नर अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल जयवल अरनाई, गवर्नर राजस्थान श्री हरि भाऊ किशन भाऊ काकड़े, चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू, चीफ मिनिस्टर मिजोरम श्री लाल धोमा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर वी.डी. मिश्रा, विभिन्न राज्यों और यूपी से जुड़े माने जनप्रतिनिधि अपने गृह में शामिल करें, लेकिन हमारे पास ये देश की अच्छी फैसिलिटी ना तो उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। हमें जब भी मॉडर्नाइजेशन की बात हम करते हैं, हम जब भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर हम देते हैं,
तो हम एक सर्जन एजेंशन के साथ ऐसा करें न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये दिखाएं यह समय की आवश्यकता है, यह समय मांग है। मुझे पूरा विश्वास है कि यारो इस आवश्यकता के अनुरूप पूरी तरह से तैयार है। सांस्कृतिक रक्षा मंत्री के रूप में और उनके पहले गृहमंत्री मुझे यारो और निर्णय करना है। उन अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिस हाई क्वालिटी सड़क आप लोग बनाते हैं वह सड़कें इतनी सुंदर होती हैं और चलते हुए आदमी कई बार अपनी मंजिल पर भूल जाए। मैं तो देशवासियों को यह भी कहना चाहूंगा कि उनको पहचाने और इसमें कहीं न कहीं आपको एक ऐसी यात्रा का अनुभव मिलेगा जिसे आप जिंदगी भर याद करें। और आप आज जब हम इस बड़े दिन का जश्न मना रहे हैं तो आइए एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का संकल्प जहां हमारे सीमावर्ती इलाकों का हर गांव वहां का हर नागरिक अपॉर्चुनिटी अवसर सिक्योरिटी है सुरक्षा और खासकर सभी 2045 तक एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करना। इसी आप एक बार बोलिए भारत माता की जय। Raksha Mantri. Now I request our honorable MLAs sir to physically inaugurate our 4 bridges which are located at different locations of Arunachal Pradesh. For gratitude to all those who made this event possible. Now I request our Commander 48 BRDF Shri Rajendra Kumar sir to deliver the vote of thanks and Good evening, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor for me to deliver the vote of thanks on this momentous occasion, the inauguration of 50 infra projects. Today marks a proud milestone in our journey towards improved connectivity, regional development and public welfare. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to our esteemed Chief Guest, Sri Monchum Gandham, Honorable MLA, for giving us his precious time out of his busy schedule to grace this event. ladies and gentlemen, with that we come to the end of today's program. On behalf of Project Udaya and Border Roads Organization, I extend my sincere thanks to Honorable MLA sir, DC Tirap sir, SP Tirap and SP Longdi sir, और JPM Pomcham for your gracious presence and enthusiastic participation. We hope you had a meaningful and enjoyable time with us. We also hope these bridges not only connect places but also people and progress of the state. Before leaving, स्कीम का इनॉग्रेशन हुआ है जी, तो कहाँ से मेन प्रोजेक्ट था? इसमें जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे लद्दाख में हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं, इसके अलावा राजस्थान में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं, स्वास्तिक में हैं। तो इसमें मेन जो हमारा जो एरिया है वो हमारा एक तो अरुणाचल प्रदेश है जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है BRO का, क्योंकि हमारा जो LAC जो बोलते हैं ना वो हमारा इससे कनेक्ट होता है, एक अरुणाचल से और दूसरा लद्दाख से। तो इसमें जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे लद्दाख के और अरुणाचल प्रदेश के। खासकर अरुणाचल प्रदेश यानी कि TCL में कितने प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन हुआ है सर? TCL में एक ही प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ है जो 110 मीटर स्पैन का हमारा स्टील सुपर स्ट्रक्चर तीसरा ब्रिज है जो पोंगचाओ कुंसा रोड में किलोमीटर 15 पे स्थित है।
अच्छा, आपका ये 103 हेडक्वार्टर का जो कौन कौन से एरिया कवर करती है यहाँ पे? हेडक्वार्टर 103 आरसीसी लॉन्गडिंग, तिरप और चांगलांग एरिया को कवर करते हैं। चलिए, थैंक यू सर। आज फाइनली इतना सारा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी ओर से? कहना चाहूँगा, खुशी का बात कहना चाहूँगा। मुझे यहाँ ये रोड, ब्रिजेस, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ऑनरेबल यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने आज उद्घाटन किया है। इसमें शामिल होने के लिए मुझे इनवाइट किया है, इसलिए हमारा चीफ इंजीनियर कमांडर लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग ये म्यांमार बॉर्डरिंग जगह है या इलाका है या डिस्ट्रिक्ट है। तो BRO का वजह से हमारा तीसरा से लेके कौनसा तक पहुंचा है, तीसरा से हमारा खन्यू बस्ती तक पहुंचा है। तो मिलिट्री मूवमेंट के लिए भी आसान और जनता का जो राशन पानी भोगने का या डेवलपमेंट का भी आसान, ये BRO लोग ने हमको जनता को कुछ बहुत सुविधा आसान कर दिया। इसमें से वेरी लकीली हमारा पोंगचाउ टू कोन्नू कोनसा का एक ब्रिज है जो आज इसमें से इट इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट हियर टुडे। इट इज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो उसमें मैं शामिल हुआ, तो मुझे जो इनवाइट किया है हम बहुत खुशी हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारा मोदी जी को, अमित शाह जी को और ये राजनाथ सिंह जी सर को और हमारा जैसे पेमा खांडू सर को, हमारा चोना सर को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा इस तक भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अभी होने जा रहा है, आइडेंटिफाइड और ये अप्रूव किया गया है। तो डिफेंस पर्पस के लिए हो या जनता का डेवलपमेंट के लिए हो, जो ब्रिज है, ये रोड है, जो कुछ भी हो, जैसे ये लोग जैसे बोलता है कि इट इज़ नॉट ओनली कनेक्टिंग प्लेसेस टू प्लेसेस, इट इज़ कनेक्टिंग द पीपल। ये डेवलपमेंट का बात भी है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मिलिट्री मूवमेंट ऑल्सो। तो ये सब सुविधा ने हमारा BRO ने कर दिया है। दिस इज़ द वेरी पॉपुलर एंड इज़ ए वेरी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री। तो आज खुशी का बात भी है कि अरुणाचल में 2 अवार्ड दिए हैं, जो बेस्ट बोल के जो दिया है, इसमें हम लोग बहुत उनको, हमारा चीफ इंजीनियर साहब और हमारा कमांडर, हमारा OC सबको भी बहुत धन्यवाद। What I am congratulating is on behalf of the people of the T7 region as a whole। तो जो कुछ भी हो या T7 region में हुआ है और होते रहेंगे, तो फ्यूचर में भी यही है रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि जितना भी सके आगे बढ़ते रहिए देश के लिए और जनता के लिए, और हमारा स्पेशली इस लोकल एरिया लोकल लोग के लिए जितना सुविधा कर सकता है करने के लिए हमारा तरफ से यही अपील है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर हॉस्पिटलिटी, फॉर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन and to invite me as a local legislator to attend this innovation program today. Thank you. हम बहुत खुश, आप लोग भी खुश, सब कुछ खुश। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे जीवन में मैंने जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, हमारे जहाँ जितना भी रोड सेंक्शन हुई है, जहाँ जहाँ स्कीम प्रोजेक्ट आया है, जहाँ तक कि रोड बनाया हुआ मैंने देखा है, जहाँ तक हमारे यहाँ, तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए रास्तों को ही मैंने देखा है, जो सही सलामत वो क्वालिटी के साथ फिनिशिंग करता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। जहाँ तक कि मैंने हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश भारत के एक आखिरी एक स्टेट होती है, यहाँ से हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार तक जाती है, वहाँ तक कनेक्ट होती है, जिसका वहाँ तक मैंने कई बार मैं जा चुका हूँ, जहाँ पर मैंने देखा कि BRO द्वारा ही किए गए रास्ते अभी तक सही सलामत मैंने देखा है। तो इस तरह से है, जितने भी अलग अलग कंपनी द्वारा और इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ही जल्द ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों ने भी जज किया होगा इस पर। तो इस तरह BRO द्वारा किए गए रोड हमेशा ही क्वालिटी वर्क लाती है
हमेशा ही बड़े प्रोजेक्ट अभी BRO के अंदर में अभी हाल ही में हमारे यहाँ कोन्नू गांव पे पंचोवक्का कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक ब्रिज बनी है। तो कुल मिलाकर आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी BRO के अंदर में बड़े से बड़े प्रोजेक्ट जो ब्रिज या रोड निर्माण, इन सबको आज ऑनरेबल विधायक पंचुन गांडम जी, श्री पंचुन गांडम जी पंचोवक्का कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके मौजूदगी में गृह मंत्री जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उद्घाटन किए गए हैं। तो चलिए, आप सब ने भी देखा होगा आज शुरू के कार्यक्रम से अभी तक की जो कार्यक्रम है आप सब ने देखा। तो यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल रहा, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा आज, और ख़ासकर हमारे TCL जैसे जगह पे ऐसा BRO होना हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब बाकी आप लोग जितने भी व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आपके मन में क्या है BRO को लेके, अपने अपने राय आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार बने रहे।